الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمين. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی معزز شخصیتوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں بتانے کا موقع عنایت کیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے فتنہ ارتداد. ارتداد کا معنی یہ ہے مرتد ہو جانا، اور مرتد کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا
اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا، یعنی مومن ہو جانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لینا، اسی چیز کو مرتد کہا جاتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جانا۔ جب آپ ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں 1-2 سال کے اندر، اس میں سر فہرست ارتداد کا فتنہ ہے، یعنی مسلم سماج اور مسلم معاشرے کی وہ بیٹیاں جس نے مسلم گھرانے کے اندر جنم لیا، اس کے بعد اس کی پرورش بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر جب انہوں نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن لیا، اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر قوموں کے دین کو اپنا لیا۔ جب آپ گوگل کے اندر ویکیپیڈیا ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً 11 لاکھ مسلم لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑا ہے۔ 11 لاکھ مسلم لڑکیاں جو مرتد ہو چکی ہیں، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلام کو بالائے طاق رکھ کر کے ہندوانہ رسم کو اپنا لیا اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لی۔ ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، ان سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہماری ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں؟ ایک ایسا انسان جس کی پیدائش مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، ایک ایسی عورت جس کی پیدائش جو ہے مسلم گھرانے کے اندر ہوئی، اس کی پرورش بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، اس کا باپ نمازی ہے، اس کی ماں نمازی ہے، لیکن ان کی بیٹیاں جو ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ ان کی بیٹیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں؟ اس کے اوپر جب ہم اور آپ سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں اور سماج کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک چیز ابھر کر کے سامنے آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آج ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، آج ہماری گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق اور اسلامی اصول کے مطابق ہماری گھروں کے اندر زندگی نہیں گزاری جا رہی ہے، ہماری گھروں کے اندر جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہماری گھر کی بچیاں جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہندوانہ رسم اختیار کر رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آج ہم مسلم معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب آج ہم مسلم معاشرے کے اوپر طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گھرانے موجود ہیں جس کے گھروں کے اندر آج بھی بے دینی پھیلی ہوئی ہے، نہ اس کی ماں نماز پڑھتی ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ بھائی نماز پڑھتا ہے، اور نہ گھر کے کوئی افراد نماز پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو اگر ایک انسان اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے جب مسجد سے آزانیں ہوتی ہے، اس وقت جب ایک انسان اپنے گھروں کے اندر بیٹھا ہوا رہ جاتا ہے، مسجد سے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بلایا جاتا ہے، مسجد سے کامیابی کی طرف بلائی جاتی ہے کہ اے لوگ آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو اور
कामयाबी हासिल करो। एक इंसान आजान को सुन लेने के बाद, एक इंसान मस्जिद से बुलावे को सुन लेने के बाद, जब एक आदमी अपने घर के अंदर बैठ करके नमाज को तर्क कर देता है, घरों के अंदर बैठ करके नमाज को छोड़ देता है, तसव्वुर करो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के जहनों के अंदर क्या चीज पेवस्त होगी। हमारी घरों के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जहनों के अंदर क्या चीज पेवस्त होगी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कुरान मजीद के अंदर यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सबसे पहले तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे अजीज साथियों, आज अगर हमारे घरों के जो बच्चे हैं अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, हमारी घरों की बेटियां अगर नमाज नहीं पढ़ती है, तो एक बाप किस मुंह से अपनी बेटी को ये कह सकता है कि तुम नमाज को अदा करो? किस मुंह से अपने बेटी को कह सकता है कि तुम नमाज को कायम करो? बाप खुद भी नमाजी है, बाप नमाजी नहीं पढ़ता है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा के अंदर अपने घर को सुधारने का एक मंसूबा दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों जो अपने आप को मुसलमानों के जुमरे में शुमार करवाना चाहते हो, ए ईमान वालों जो अपने आप को चाहते हो कि हमारा शुमार जो है मोमिनों में हो जाए, ए ईमान वालों सबसे पहले अपने आप को, फिर अपने घर वालों को, ए ईमान वालों सबसे पहले तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा कर ले जाओ, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा कर ले जाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी उन लोगों को भी तुम नमाज की तरफ बुलाओ, उन लोगों को भी हुक्म दो कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के घर की तरफ से बुलावा आ रहा है, चलो मस्जिद के अंदर नमाज को अदा कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला यही तो मंसूबा दे रहा है, यही तो अल्लाह तबारक व तआला कानून दे रहा है कि लोगों, अगर तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को नमाजी बनाओ, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर उसके बाद अपने खानदान वालों को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे अजीज साथियों, आज इर्तिदाद का जो फितना हमारे समाज और हमारे मुआशरे के ऊपर फैली हुई है, आज हमारी घर की बच्चियां जो है अगर गैर कौमों की तरफ अगर जा रही है और गैर कौमों के रविश के अंदर अगर मायल हो रही है, तो एक रीजन कहीं ना कहीं ये है कि हमारी घरों के अंदर फैली हुई बेदीनी है। हमने अपने घर को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की, हमने अपने घर की बच्चियों की तरबियत जो है इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं की। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इर्तिदाद के फितने को रोकना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी घर की बच्चियां इर्तिदाद के फितने से बच जाए, हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये वबा फैली हुई है, इर्तिदाद का जो फितना फैला हुआ है, अगर इस फितने से मुस्लिम मुआशरे को रोकना चाहते हो, मुस्लिम मुआशरे को अगर रोकना चाहते हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ऊपर अमल किया जाए जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है, एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसा एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाला हुआ हो। एक ऊंट हो और उस ऊंट की नाक में नकील डाला हुआ हो और उस नकील का लगाम किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे दिया गया हो, और जिस ऊंट का लगाम एक इंसान के हाथ में दे दिया गया हो और जिस ऊंट की नाक में नकील डाल दिया गया हो, अब वो ऊंट अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो ऊंट अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, क्योंकि उसके नाक में नकील डाल दिया गया है और नकील का लगाम जो है एक दूसरे इंसान के हाथ में दे दिया गया है। अब वो इंसान उस ऊंट को जिस वक्त बैठने के लिए कह देगा, उस ऊंट को वहीं पर बैठ जाना होगा, और जिस वक्त
एक इंसान उस ऊंट को चलने के लिए कह देगा, उसी वक्त उस ऊंट को चलना पड़ेगा, उस ऊंट को उसी वक्त वो ऊंट चल सकता है जब वो आदमी जिसके हाथ में उस ऊंट के नकील का लगाम है, जब वो आदमी उस ऊंट को चलने का हुक्म देगा, उसी वक्त वो ऊंट चल सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान की मिसाल ऐसी है, एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है कि जब एक इंसान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है, जब एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आता है, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि समझो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया हो, समझो कि उस इंसान की नाक में नकील डाल दिया गया हो और उस नकील का लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया हो। समझो कि उस इंसान की नाक में जो नकील डाला गया है उसका लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया है। अब एक इंसान को कुरान जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते की तरफ एक इंसान जा सकता है, हदीस जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते की तरफ वो इंसान जा सकता है। मेरे अजीज साथियों, इसी हदीस के ऊपर अमल करने होगी। आज हमारे घरों के अंदर जब हम अपने बच्चियों की तरबियत करना शुरू करें, जब अपने बेटों की तरबियत करना शुरू करें, तो इसी हदीस के ऊपर अमल किया जाए और अपने बच्चों को बताया जाए, अपने बच्चियों को बताया जाए कि ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरी बेटियों सुनो, हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान की मिसाल ऐसी है जैसा कि उसकी नाक में नकील डाल दिया गया हो और उसका लगाम कुरान और हदीस को थमा दिया गया हो। अब कुरान और हदीस हमें जो रास्ता बताएगा हम उसी रास्ते की तरफ जा सकते हैं, उसके अलावा हम किसी दूसरे को रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, अपनी बच्चियों की तरबियत ऐसे ही करनी होगी। ऐ मेरे बच्चियों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर पर्दे का हुक्म दिया है। ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारा शुमार जो है मुसलमानों में होता है, तुम मुस्लिम घराने की बच्चियां हो, जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया करो, अपने चेहरे के ऊपर जो है और अपने सरों के ऊपर चादर डाल लिया करो। जब अपने घर से बाहर निकलो तो पर्दे में मलबूस होकर के अपने घर से बाहर निकलो। और जब तुम किसी गैर महरम से बात करो, जब तुम किसी मर्द से बात करो तो तुम्हारी आवाज में जो है कड़ापन होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज में सख्ती हो, नरमी नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीज साथियों, जब हम इसी हदीस के मुताबिक अपनी बेटियों की तरबियत करना शुरू करेंगे, जब इसी हदीस के मुताबिक जब हम अपनी बेटियों की तरबियत करना शुरू करेंगे, उसी वक्त जो है हम इस फितने से जो है निजात पा सकते हैं, उसी वक्त हम इस इर्तिदाद के फितने से निजात पा सकते हैं जिस वक्त हम अपनी बेटियों की परवरिश जो है और तरबियत जो है कुरान के इसी उसूलों के मुताबिक करना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज साथियों, आज मुस्लिम मुआशरे के नौजवान भी बिगड़े हुए हैं, उनका भी रविश है, चाहे वो नशा आवर चीजों का इस्तेमाल के ताल्लुक से हो, चाहे वो ज़िनाकारी के रास्ते के ताल्लुक से हो, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, मुस्लिम मुआशरे के नौजवान भी बिगड़े हुए हैं। मुस्लिम मुआशरे के नौजवान की हालत भी खराब है। जब हम उनकी भी परवरिश करना शुरू करें, जब हम उनकी भी तरबियत करना शुरू करें तो इसे कुरान और हदीस के मुताबिक ही शुरू करें। जब हम नौजवानों और अपने बेटों की तरबियत करना शुरू करें तो इसी हदीस के ऊपर अमल करें कि हमारे लिए जो है ज़ाब्ता हयात कुरान मजीद है। अगर हम कोई अमल करेंगे तो वो अमल कुरान के मुताबिक होनी चाहिए, अगर हम कोई रास्ता इख्तियार करेंगे तो वो रास्ता कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। तो मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप इर्तिदाद के फितने से बचना चाहते हैं और इर्तिदाद के फितने से निजात पाना चाहते हैं तो मेरे अजीज साथियों, हमारे लिए एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि हम आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हदीस के ऊपर अमल करें कि हमारे लिए जो है ज़ाब्ता हयात कुरान करीम है, हमारे लिए जो है रास्ता दिखाने वाली चीज अगर कोई है तो वो कुरान और हदीस है। इसके अलावा हम किसी रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते।
तो ये पहली रीजन है कि हमारे घरों के अंदर फैली हुई बेदीनी, जिसके वजह से मुस्लिम मुआशरे की बच्चियां और मुस्लिम मुआशरे की लड़कियां जो है आज मुर्तद का शिकार हो रही हैं। दूसरी रीजन, दूसरा वजह यह है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर तालीमी निज़ाम नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके अंदर जाकर के मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम लड़कियां जो है दीन की तालीम हासिल कर सके। कोई ऐसा इदारा नहीं है हमारे पास जिसके पास पहुंच करके मुस्लिम मुआशरे की बच्चियां जो है आला तालीम हासिल कर सके। मेरे अजीज साथियों, और इसी मुस्लिम समाज का एक बड़ा गिरोह, बड़ा तबका जो है लड़कियों से और औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे को भी बंद कर दिया है, और औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे को भी बंद कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं वजह यह है इर्तिदाद और मुर्तद होने का जो फितना आज हमारे मुआशरे और समाज के ऊपर जो फैली हुई है, कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आज हमने अपनी माएँ और बहनों को दीनी तालीम से रोशनास कराने की कोशिश नहीं की है। हमने कोई ऐसा प्लानिंग नहीं बनाया है जिसके जरिया हम अपने समाज और मुआशरे की औरतों तक कुरान और हदीस की बातों को पहुंचा सके। हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है जिसके जरिया हम मुस्लिम मुआशरे की जो औरतें हैं और जो बच्चियां हैं और मुस्लिम मुआशरे की जो शहजादियां हैं उन तक हम दीनी तालीम को पहुंचा सके। मेरे अजीज साथियों, कहीं ना कहीं वो लोग भी कसूरवार हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी सजा के हकदार हैं जो लोग इस तरह के मंसूबे बनाए करते हैं कि मुस्लिम मुआशरे की जो औरतें हैं वो मस्जिद के अंदर जा ही नहीं सकता। मेरे अजीज साथियों, आज कुछ लड़कियां और कुछ औरतें अगर दीनी तालीम से रोशनास हो रही है तो वो उलमाए अहले हदीस की कारकर्दगी है जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीम चला करके सोशल मीडिया के अंदर दीनी तालीम को फरोग दिया जा रहा है, जिसको सुनने के बाद आज मुस्लिम मुआशरे की बच्चियां जो है दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर हम इस फितने से बचना चाहते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम कोई ऐसा मंसूबा बनाए, हम कोई ऐसा प्लानिंग बनाए जिसके जरिया हम अपने मुआशरे की औरतों तक, हम अपने मुआशरे की नौजवान बच्चियों तक दीन की तालीम को पहुंचा सके, कुरान और हदीस की बातों को पहुंचा सके, जिसके बाद वो भी कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला बन जाए। मेरे अजीज साथियों, इर्तिदाद का फितना जो फैला हुआ है इसकी एक रीजन ये भी है, और हमारे पास कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जिसके अंदर जा करके हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल कर सके, और इसी आला तालीम के नाम पर, डॉक्टर बनने के नाम पर, इंजीनियर बनने के नाम पर आज मुस्लिम मुआशरे की लड़कियां जो है कॉलेजों का रुख कर रही है, यूनिवर्सिटियों की रुख कर रही है, और जिसका समरा हमें मिलता है कि जिस वक्त उसकी पढ़ाई पूरी होती है इतने दिनों तक वो मुर्तद का शिकार हो जाती है, किसी ऐसे इंसान की हद पे चढ़ जाती है जिनका मंसूबा यही है कि मुस्लिम मुआशरे की बच्चियों को जो है भटकाया जाए और घर वापसी के नाम पर, भगवा लब ट्रेड के नाम पर मुस्लिम मुआशरे की बच्चियों को बिगाड़ा जाता है और उसे दीन इस्लाम से फेरा जाता है और उसे मुर्तद का शिकार बनाया जाता है। मेरे अजीज साथियों, मैं एक छोटी सी मिसाल के तौर पर एक मजमून को आपके सामने में पेश कर रहा हूं जिससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, अगर हमारे पास कोई इदारा नहीं है, अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बच्चियां आला तालीम के नाम पर अपने बाप को और अपने घर वालों को धोखा देती है। मेरे अजीज साथियों, एक मजमून निगार एक मजमून के अंदर लिखते हैं, एक मजमून निगार अपने मजमून के अंदर लिखते हैं कि एक मर्तबा में सफर के लिए निकला, एक मर्तबा में सफर के लिए निकला, मैं कलकत्ता से पटना आ रहा था, मैं कलकत्ता से पटना आ रहा था और मैं ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ, मैं ट्रेन के अंदर बैठा, मैं अभी अपने सामान को जो है जगहों के ऊपर रख ही रहा था, इतने में एक इंसान उसी ट्रेन के अंदर दाखिल होता है, उसी गाड़ी के अंदर एक दूसरा इंसान दाखिल होता है। मैंने उस इंसान के चेहरे के ऊपर देखा, मैंने उसके लिबास के ऊपर गौर फिक्र किया, मैंने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर जो है दाढ़ी मौजूद है और उसके लिबास से मुझे ये मालूम हुआ कि
ये कोई आलिम दीन है, ये कोई आलिम दीन है, ये कोई आलिम है। मैंने उस इंसान को देखा, इतने में मैंने देखा कि उसके साथ एक बच्ची भी मौजूद है, उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है जो बुर्के में मलबूस है, जो बुर्का पहनी हुई है। उस इंसान के साथ एक लेडी भी मौजूद है जो बुर्का पहनी हुई है। वो इंसान मेरे पास आता है, वो आलिम मेरे पास आता है और मुझसे कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इंसान मुझे सलाम करता है, मैं जवाब देता हूँ। वो इंसान मुझसे कहता है कि मेरे भाईजान, ये मेरी बेटी है, वो भी आला तालीम हासिल करने के लिए, ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए पटना जा रही है, कोलकाता से पटना जा रही है। मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि मेरी बेटी की निगहबानी किया जाए, मेरी बेटी को पटना तक छोड़ देना, मेरी बेटी की निगहबानी करते हुए पटना की रेलवे स्टेशन तक छोड़ देना। वो इंसान कहता है, मैंने उसे एतमाद में लिया और मैंने उस इंसान से कहा कि आप बेफिक्र हो करके जाए, मैं इसकी देखभाल करूंगा, मैं इसकी रखवाली करते हुए पटना तक छोड़ूंगा। वो इंसान खुश हो जाता है और मुझे सलाम करके वो इंसान चला जाता है। वो सूखीबा सफा इंसान मुझे सलाम करके चला जाता है। उतने में वो गाड़ी कोलकाता के रेलवे स्टेशन से निकलती है, वो गाड़ी कोलकाता से निकलती है पटना की तरफ, अपने मंजिल मकसूद की तरफ निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ स्टेशन दूर जाने के बाद मैंने देखा कि उस लेडी के पास, मैंने देखा कि उस लड़की के पास एक इंसान आकर के बैठता है, एक नौजवान आकर के बैठता है जिसके हाथ में भगवा कलर का धागा बंधा हुआ है और दूसरे हाथ में कड़ा पहना हुआ है। मैंने देखा कि वो इंसान उस लड़की के पास आकर के बैठ जाता है और उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। जब मैं ये चीज देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है और मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोच करके रुक जाता हूँ कि कहीं किसी दूसरे मौजू के ऊपर गुफ्तगू किया जा रहा हो। कुछ देर के बाद, कुछ दूर जाने के बाद और कुछ रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद मैंने फिर से उसी इंसान को देखा कि अब वो मर्द जिसके हाथ में कड़ा है और जिसके हाथ में भगवा कलर का धागा बंधा हुआ है, वो इंसान उसी लेडी के साथ, उसी लड़की के साथ सरगोशी करना शुरू कर देता है। उस लड़की के साथ जो है हंसना भी शुरू कर देता है और बिल्कुल उस लड़की के साथ घुल मिल जाता है। मुझे गुस्सा आता है और मैं फिर से उठना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद थी। मैं उठ करके उसे मना करना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ मौजूद थी। मेरी बीवी ने कहा कि सोहरे सरताज उसे छोड़ दिया जाए, कहीं वो लड़की आपके ऊपर कहीं घिनौना इल्जाम ना लगा दे और आपके ऊपर कहीं कोई इल्जाम ना लगा दे। इसलिए मैं रुक गया और मैंने उसको उसी हालत पर छोड़ दिया। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार लिखते हैं कि मैंने अपनी नजरों से देखा कि वो लड़की, जिस लड़की को उसके बाप ने बुर्का पहना करके गाड़ी के ऊपर बिठाया था, ट्रेन के ऊपर बिठाया था, वो लड़की अपने बुर्के को उतार चुकी थी, अपने चेहरे से पर्दे को हटा चुकी थी और अपने बुर्के को उतार चुकी थी। और जब मैं पटना के रेलवे स्टेशन के अंदर उतरा तो मैंने उस लड़की को देखा कि उसके पूरे जिस्म से जो है बुर्का उतर चुका था और अपने बुर्के को जो है अपने बैग के अंदर रख लिया था और वो आम लिबास में उसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है। मेरे अजीज साथियों, वो मजमून निगार कहते हैं, वो मजमून निगार लिखते हैं कि मुझे ये सब सारी की सारी चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं खून के आंसू रोना शुरू कर दूं। एक बाप के ऊपर क्या बीतेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे आला तालीम हासिल करने के लिए पटना के हॉस्टल के अंदर भेजा था। आज वो मेरी बच्ची जो है, आज वो मेरी बेटी जो है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ जो है गला
गलत रास्ते की तरफ जा रही है। वो इंसान कहता है, वो मजमून निगार कहता है कि ये सब सारी की सारी चीजें देखने के बाद मुझे ये चीज का एहसास हुआ और मैंने ये सोचा और मैंने अपने दिल के अंदर ये बात कहा कि ए लड़की, काश तेरे बाप का नंबर मेरे पास मौजूद होता ताकि मैं तुम्हारी असलियत को, ताकि मैं तुम्हारी हकीकत को तुम्हारे बाप तक पहुंचाता। जिस बाप ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुझे आला तालीम दिलाने के लिए, तुझे इंजीनियर बनाने के लिए, तुझे डॉक्टर बनाने के लिए, आला तालीम दिलाने के लिए जो है हॉस्टल और कॉलेजों के अंदर भेजा, आज तुमने उसी के एतमाद को अपने पांव तले कुचल दिया। तो मेरे अजीज साथियों, अगर हमारे समाज और हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इलाके के अंदर अगर आला तालीम का कोई मंसूबा और प्लानिंग नहीं है, तो मेरे अजीज साथियों, इसी आला तालीम के नाम पर आज इर्तिदाद के फितने जो बर्पा हो रहे हैं, ज्यादातर फितने जो है इसी आला तालीम के नाम पर और कॉलेजों के नाम पर, यूनिवर्सिटियों के नाम पर, और यूनिवर्सिटियों के अंदर से ही ये फितना फैला। और यही वजह है कि आज मुस्लिम लड़कियां जो है 11 लाख के करीब जो है इर्तिदाद के फितने में जो है मुलव्वस हो चुकी है और इर्तिदाद के फितने में आकर के मुर्तद हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, रीजन यही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ यही समझा कि मस्जिद के अंदर जाकर के सजदा कर लिया जाए, मस्जिद के अंदर जाकर के नमाजें पढ़ लिया जाए, यही काफी है। मेरे अजीज साथियों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कोई ऐसा इदारा कायम कर सकते हैं जिस इदारे को कायम करने के बाद हमारे मुस्लिम बच्चियां जो है दीनी तालीम से रोशनास हो सके, बेहतरीन तालीम हासिल कर सके, तो मेरे अजीज साथियों, ये कदम हमें और आपको उठानी चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी बका है। हम अपने बच्चियों को अपने समाज के अंदर अगर बेहतरीन तालीम दे दें, अपनी समाज और मुआशरे के अंदर रख करके अगर हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करा दें, तो मेरे अजीज साथियों, दूसरों के इदारों तक, दूसरों के कॉलेजों तक, दूसरों की यूनिवर्सिटियों तक हमें भेजने की क्या जरूरत है। मेरे अजीज साथियों, वजह यही है कि हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इस फितने से दो चार हो रहे हैं। और अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी ये प्लानिंग बनाता है, ये मंसूबा बनाता है, तो मेरे अजीज साथियों, मुस्लिम तबके के एक बड़ा गिरोह जो है उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया करता है कि देखो ये लोग जो है औरतों को मस्जिद के अंदर लेकर के जाया करते हैं। मेरे अजीज साथियों, अगर हम अपने घर की औरतों को, अगर हम अपने घर की बच्चियों को इर्तिदाद के फितने से, मुर्तद होने से और गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचाने से अगर रोकना चाहते हैं, तो मेरे अजीज साथियों, ये मंसूबा और ये प्लानिंग हमें बनानी होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर उन लोगों के लिए एक बड़ा मुजदा सुना दिया है और उन लोगों के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल कर दी है कि जो लोग ईमान ले आने के बाद अगर कोई इंसान मुर्तद हो जाता है, अगर कोई आदमी काफिर हो जाता है, तो उस इंसान की सारी नेकियां जो है वो तबाह बर्बाद कर दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन व ला इफ्तदा बि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को खबरदार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को आगाह कर रहा है जो लोग इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ करके काफिरों के दीन को अपना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम, अगर किसी इंसान ने कुफ्र का इर्तिकाब कर लिया, अगर कोई आदमी काफिर हो गया और अगर वो इंसान कुफ्र की हालत में ही मर जाता है, अगर वो इंसान कुफ्र की हालत में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, अगर कुफ्र की हालत में ही मर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन व ला इफ्तदा बि, जो इंसान कुफ्र की हालत में मर जाता है, अगर वो आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए, दोज़ख के अज़ाब से बचने
के लिए अगर पहाड़ की बराबर भी सोना लेकर के आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस पहाड़ के बराबर सोने को भी ठुकरा देगा, उसके पहाड़ के बराबर सोने को भी इनकार कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व लौ इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। और यही वो लोग हैं जिसके लिए मैंने दर्दनाक अज़ाब तैयार करके रखा है, जिनके लिए मैंने एक बड़ा अज़ाब तैयार करके रखा है। जो लोग ईमान ले आने के बाद, मुस्लिम घराने में पैदा हो जाने के बाद जो लोग कुफ्र का इर्तिकाब कर लेते हैं, ईमान ले आने के बाद फिर से कुफ्र का इर्तिकाब कर लेते हैं, यानी इस्लाम से फिर जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि यही वो लोग हैं जिनके लिए हमने अज़ाब अलीम को तैयार करके रखा है। वमा लहुम मिन नासिरीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर और एक डरावने अज़ाब की तरफ जो इशारा कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब हम इसे दर्दनाक अज़ाब जहन्नम के अंदर देंगे, जब हम इसे जहन्नम के अंदर दर्दनाक अज़ाब देंगे, उस वक्त ये इंसान चीखेगा, पुकारेगा और मदद के लिए पुकारेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है वमा लहुम मिन नासिरीन। उस वक्त कोई भी इंसान इसकी मदद के लिए नहीं आएगा और इसका कोई हामी व नासिर नहीं होगा, इसका कोई मददगार नहीं होगा। जो लोग ईमान ले आने के बाद मुर्तद हो जाया करते हैं, जो लोग ईमान ले आने के बाद कुफ्र का इर्तिकाब कर लिया करते हैं, जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आने के बाद आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आने के बाद जो लोग इस्लाम से फिर जाया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर दिया करते हैं, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इसके लिए जब हम इसे जहन्नम के अंदर अजाब के अंदर झोंकेंगे तो इसका कोई हामी व नासिर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। तो मेरे अजीज साथियों, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए उसका ईमान सबसे बड़ी दौलत है, उसका ईमान उसका सबसे बड़ा सरमाया है। और आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की बच्चियां और मुस्लिम मुआशरे के लड़के आज इसी ईमान को बालाए ताक रख करके आज गैर कौमों की तरफ जा रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, ये शैतान की एक चाल है और इस बात के ऊपर भी हमें और आपको गौर फिक्र करनी होगी कि एक मुसलमान के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी दौलत अगर कोई चीज है तो उसका ईमान है। ये वही ईमान है जिसके ऊपर आज से नहीं बल्कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, उसी वक्त से शैतान मरदूद और शैतान लईन इसी ईमान के पीछे पड़ा हुआ है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, उसी वक्त शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान के ऊपर डाका डाला और उसे गुमराह करने की कोशिश की। और जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजमीन अरब की तरफ जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया और लोगों तक इस कलमे को पहुंचाया, लोगों को मोमिन बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के रोशन तालीमात को लोगों तक फैलाना शुरू किया, उसी वक्त कुछ सहाबाए किराम ऐसे भी थे जिन लोगों ने जब इस्लाम को कबूल किया तो इनसे शैतान मरदूद की चाल के ऊपर कुछ लोगों ने सहाबाए किराम को इतनी परेशानियों के अंदर डाला, सहाबिया को इतनी परेशानियों के अंदर डाला और उन परेशानियों को झेलने के बाद ना तो सहाबाए किराम ने ना तो सहाबिया ने, किन्हीं भी लोगों ने इस्लाम के दामन को छोड़ने की कोशिश नहीं की और किसी ने भी इस्लाम से फिरने का इरादा नहीं किया। मेरे अजीज साथियों, जब आप इस्लामी तारीख का मुताला करेंगे, जब आप इस्लामी तारीख के पन्नों को उलटना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे वाक़यात मौजूद हैं सीरत की किताबों में और तारीख की किताबों में जिसके अंदर जब सहाबाए किराम ने ईमान लाया और इस्लाम को कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला की लाई हुई दीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम तक पहुंचाया, जब उस दीन को सहाबाए किराम ने कबूल किया
تو انہیں مشرکوں نے سرزمین عرب کے کافروں نے صحابہ کرام کے اوپر اتنی پریشانیاں ڈھائیں کہ آج وہ پریشانیاں اگر ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جائے تو شاید ہم اور آپ ان پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کو لاتی ہے، جب اسلام قبول کرتی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں، یہ بات ابو جہل تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیتا ہے اور اس کے شوہر کو بھی قید کر لیتا ہے، اس کے بیٹے کو بھی قید کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں، وہیں پر اس کے شوہر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، وہیں پر اس کے جوان بیٹے کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ اے سمیہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری جوان بیٹے کے سامنے، تمہارے شوہر کے سامنے تجھے برہنہ نہ کیا جائے، تمہارے شوہر کے سامنے جو ہے تمہیں جو ہے ذلیل نہ کیا جائے، تو اے سمیہ تم ایمان سے پھر جاؤ، تم ایمان کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دو، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ جب ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے سامنے برہنہ ہو جانا گوارا کر لیتی ہے، ننگا ہو جانا گوارا کر لیتی ہے، لیکن ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی ذکر ہے اور چشم فلک نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے، اسی ایمان کی پونجی کو بچانے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو جانا گوارا کر لیتی ہے، اپنے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کروا لینا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی پونجی ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کی جو بچیاں ہیں، ہمارے معاشرے کی جو لڑکے ہیں، چند سکوں کے لیے اور چند چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو جو ہے بالائے طاق رکھ دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، جب ایمان لے آتے ہیں، جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، یہ بات امیہ بن خلف تک پہنچ جاتی ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیتے ہیں اور قید کرنے کے بعد اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اسے تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنی اذیت دینے کے بعد، اتنی پریشانیاں اس کے اوپر ڈالنے کے بعد امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اے بلال، یا تو اسلام سے پھر جا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے، یا ایسے ہی تڑپتے ہوئے مر جا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو کتنا پختہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا، ان لوگوں کو دیا تھا، صحابہ کرام کو دیا تھا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد، اتنی پریشانیوں کو جھیلنے کے بعد بھی اپنی زبان سے احد احد کے لفظ نکالا کرتے تھے اور یہ گواہی دیا کرتے تھے کہ معبودان حق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر کوئی سجدے کے قابل ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور ہم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان سے بھی انکار نہیں
کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہوا کرتی تھی کہ ساری کی ساری پریشانیاں جھیل لیا کرتے تھے، ساری کی ساری دقتوں کو جھیل لیا کرتے تھے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کو بچایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایمان کو تھوڑی سی پریشانیاں ہماری اوپر آتی ہے اور ہم چند سکہ کے لیے اپنے ایمان کو جو ہے بیچ دیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے، تاکہ وہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ارتداد کے فتنے کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور میں نے وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہماری بچیوں کے ایمان کو ہم اور آپ بچا سکتے ہیں، اور ارتداد کے فتنے سے، مرتد ہونے سے، اسلام سے پھر جانے والے فتنے سے ہم اور آپ اپنے بچیوں کو اور اپنے لڑکوں کو بچا سکتے ہیں۔ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔